Good morning, my dear students. Today I am going to take English of class 9 and the topic is the bond of love part 1. So today I am going to teach you the bond of love. So the bond of love is a beautiful lesson which shows how the close bond between a bear and the author's wife. There comes a time when the author's wife cannot live without the bear, and the bear also cannot live without the author's wife. So this is the story of a close bond between an animal and a human being. So I welcome you once again. Let's move towards this relation, towards the next slide. So this is a beautiful story written by Kenneth Anderson. This is the close bond between the author's wife and the sloth bear whom I was talking about. So see this beautiful picture, my dear students. I'll move on to the next slide, and you must know something about the author first. Before I continue this lesson, I want to tell you something about the author. I want to give a brief introduction about the author. Kenneth Anderson, I'm sorry. One minute. Let's move towards the lesson. So you see, Kenneth Anderson was born in Bolaram, Secunderabad, and came from a British family that settled in India for 6 generations. So, Kenneth Anderson is an Indian author of English origin. Clear? The name itself reflects that he is an author of British origin. So, Kenneth Anderson, the author, see this is the picture of the author. He was born in Bolaram. Bolaram is a place in Secunderabad in Andhra Pradesh. And he finds his origin from a British family that settled in India for 6 generations. 6 generations means for 600 years. His father, Douglas Stuart Anderson, was a superintendent of the FCMA in Pune. उसके पिता जो है डॉगलस स्टुअर्ट एंडरसन, वो कौन थे? वो सुपरिंटेंडेंट थे FCMA में, पुणे में FCMA है। FCMA एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर सुपरिंटेंडेंट में काम करते थे। किसके पिता? केनेथ एंडरसन के। और उनके पिता का क्या नाम था? Douglas Stuart Anderson. Okay, so his forefathers settled in India, and that's why they came to be known as Anglo-Indians. About 600 years, his forefathers settled in India. Kenneth Anderson's forefather. Okay,
so he is an Indian by British origin. Okay, now I'll move on to the next slide and let's know more about the author. Maharashtra and dealt with the salaries paid. So his father worked in Maharashtra and he dealt with the salaries paid to military personnel. So the people who worked in military means the officers. So his father dealt with the salary paid to the military officers having an honorary rank of captain, and his father has got the rank of captain. Okay, इसके पिता को, इस ऑथर के पिता को एक ऑनररी रैंक मिला था कैप्टन का. His mother Lucy Ann Taylor Nee Bailey was the granddaughter of John Taylor, who for his services had been gifted land in Bangalore by Sir Mark Cuban. ध्यान से सुनेंगे बेटा. एंडरसन की मां, इस ऑथर की मां जिसका नाम है लूसी एन टेलर, इसको बेली के नाम से जाना जाता है. ये ग्रैंड डॉटर थी जॉन टेलर का. जॉन टेलर की ग्रैंड डॉटर थी और जॉन टेलर को माना जाता है फॉर हिज सर्विसेज. जॉन टेलर इज नोन फॉर हिज सर्विसेज. Had been gifted land in Bangalore by Sir Mark Cuban. Sir Mark Cuban एक और अधिकारी होंगे, Sir Mark Cuban. ये लूसी के जो ग्रैंडफादर थे जॉन टेलर, उसको गिफ्ट किए थे लैंड बेंगलोर में. सो बेंगलोर में लैंड गिफ्ट किए थे, उसके लिए मार्क क्यूबन जाने जाते हैं. Douglas, like most British soldiers, took an interest in sport hunting and influenced Kenneth's interest in the outdoors and hunting. Douglas एंडरसन जो इस लेखक के पिता हैं, वो दूसरे ब्रिटिश सैनिकों के जैसे वो बहुत ही रुचि लिए हंटिंग में. वो एक हंटर भी थे. ही लाइक हंटिंग. और वो केनेथ इंटरेस्ट को भी, केनेथ एंडरसन मतलब राइटर के इंटरेस्ट को भी प्रभावित किए इन द आउटडोर्स एंड हंटिंग. आउटडोर्स में, बाहर में कुछ गेम खेलना हुआ, कुछ कार्य हुआ और हंटिंग का कार्य हुआ, ये सब में उसका इंटरेस्ट, उसे रुचि को दिलाए, रुचि को प्रकट करवाए. कौन? डॉगलस, जो कि लेखक के पिता है, क्योंकि खुद एक हंटर थे और हंटिंग उनको पसंद था और वो भी चाहते थे कि उनका लड़का जो ऑथर है वो भी हंटिंग में उसका भी इंटरेस्ट रहे और आउटडोर वर्क में इंटरेस्ट रहे. तो ये भी प्रभावित किए अपने काम से. डॉगलस ने अपने बेटे को प्रभावित किया. नाउ this is about the author. Now we must know something about the story. I am going to give a brief introduction about the story. The bond of love is about the emotional bond which the author's wife and her pet bear share between them. A bond of love, ये जो कहानी है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखी कहानी है जो कि एक बॉन्ड को दर्शाता है, एक क्लोज बॉन्ड को दर्शाता है, जो कि ऑथर, लेखक की पत्नी और एक बियर, दोनों में एक रिश्ता रहता है, प्यार का रिश्ता रहता है, प्रेम का रिश्ता रहता है दोनों में. उसी प्रेम के रिश्ते को दर्शाता है ये कहानी. क्लियर? द ऑथर rescued the baby bear in an accident and gifted it to his wife. ये ऑथर ने
इस बेबी बियर को एक एक्सीडेंट में बचाया था लेखक ने, और अपनी वाइफ को गिफ्ट में दिया था इस बेबी बियर को। इस बेबी बियर को गिफ्ट में दिया था अपने वाइफ को ऑथर। आफ्टर दैट दे वेर बॉन्डिंग लाइक ही वॉज देयर चाइल्ड एंड द ऑथर्स वाइफ लव्स हिम अ लॉट। और ऑथर ने अपने पत्नी को एक छोटे से भालू को बचाया था और अपने वाइफ को गिफ्ट दिया था, और उसकी वाइफ उस भालू को अपने बच्चे जैसे लालन पालन की और रखी थी, अपने बच्चे के जैसे ही उसको प्यार दुलार की थी और उसको रखी थी अपने बच्चे के जैसे। तो एक गहरा संबंध हो गया था, मां बेटे के जैसा संबंध हो गया था भालू और ऑथर की पत्नी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। We see that the family nourished him and helped him grow। और हम लोग देखते हैं, इस कहानी में देखेंगे कि किस प्रकार परिवार इस भालू का देखभाल करता है और उसको मदद करता है बढ़ने में। छोटा सा भालू रहता है जो बढ़कर एक विशाल भालू बन जाता है। As Bruno starts growing up, he bonded with everyone from the children to the pet dogs। जैसे ब्रूनो बड़ा होता है, हो हर किसी से जाकर मिल जाता है, हर किसी से जाकर संबंध जोड़ लेता है। फ्रॉम द चिल्ड्रन टू द पेट डॉग्स, छोटे छोटे बच्चों से भी वो घुल मिल जाता है और उसके साथ साथ पालतू कुत्तों से भी वो दोस्ती कर लेता है। ये छोटा सा बियर जिसका नाम है ब्रूनो, इस बियर का क्या नाम है? ब्रूनो, याद रखिएगा। He had his own bed and would play around with the little ones all day। उसका अपना बेड है, बिस्तर है जिसपे वो सोता है, रहता है, और वो छोटे छोटे बच्चों के साथ सारा दिन खेलते रहता है। सारा दिन उन लोगों के साथ, छोटे बच्चों के साथ वो खेल में शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कहानी के बारे में देखें। Come to the original story. This is the picture. This is the author and the bear. Okay. This is the picture of a bear. Okay, sloth bear. Now come to the story. In your book it's given, from there I am going to start. Before you read, पढ़ने से पहले कुछ जानकारी लेना जरूरी है। ओके, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? क्या मनुष्य और पालतू जंगली जानवरों के बीच में क्या दोस्ती हो सकता है? ये लेखक क्वेश्चन पूछता है कि जंगली जानवर और मनुष्य के बीच में क्या दोस्ती हो सकता है? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author। चलिए इस कहानी में पढ़ते हैं, एक सुंदर सी कहानी पढ़ते हैं, एक ऑर्फेंड, एक अनाथ स्लॉथ बियर के बारे में, जिसको ऑथर ने बचाया था, उसको लेखक ने उसे बचाया था। तो उसकी एक कहानी है, बहुत सुंदर सी कहानी है। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो कहानी यहां से शुरू होता है। स्लॉथ बियर्स इनहेबिट फॉरेस्टेड एरियाज। स्लॉथ बियर के बारे में जानना जरूरी है। एक्सक्यूज मी। स्लॉथ बियर्स इनहेबिट फॉरेस्टेड एरियाज। ये लोग कहां रहते हैं? फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशन। ये लोग कहां रहते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं और ग्रासलैंड्स में रहते हैं, लोअर एलिवेशन, ज्यादा ऊंचाई पे नहीं रहते हैं। हाँ, ये जो ग्रासलैंड जो एरिया है पूरा लंबे लंबे घास से भरा हुआ रहता है,
और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूरा जंगल है, पूरा पेड़ पौधों से भरा हुआ रहता है। हाँ, लोअर एलिवेशन, ज्यादा ऊंचाई वाले जगह पर नहीं रहते, कम ऊंचाई वाले जगह पर स्लॉथ बियर रहते हैं। स्लॉथ बियर मीन्स ए टाइप ऑफ लेजी बियर, उसको कहते हैं। एक दूसरे प्रकार का बियर है, बियर ही है, जो स्लॉथ बियर नाम दिया गया है। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स। स्लॉथ बियर के जो बाल होते हैं शरीर पर वो झबरेदार होते हैं और लॉन्ग मजल्स, उनके मुख होता है लंबे होते हैं। नॉर्मल बियर्स उनका आकार अलग होता है और उसका मुख जो होता है अलग होता है, मजल्स उसको बोलते हैं। Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube. अपने क्लॉज, हाँ, क्लॉज का उपयोग करते हैं डिग करने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए। अपने लिप्स का उपयोग करते हैं, एक ट्यूब जैसा सुरंग बना देते हैं जमीन में, सुरंग जैसा, हाँ, ट्यूब बना देते हैं अपने लिप्स से। Which can go deep into the ground, अंदर तक ये गड्ढा करते हैं जमीन में और सुरंग के जैसा ट्यूब बना देते हैं। और into hard to reach areas like dead trees for their food, और क्या करते हैं, जमीन में सुराख करते हैं, हाँ, और उसमें अंदर घुस जाते हैं। ऐसी जगह में घुसते हैं जहां मरे हुए पेड़ पौधे रहते हैं, मतलब जो सूख गए हुए रहते हैं, सड़ गए रहते हैं, और वहां पर, हाँ, दीमक एक को खोजते हैं। ये सब दीमक को खाते हैं स्लॉथ बियर्स। देयर फूड इज टर्माइट्स। तो टर्माइट्स को खोजने के लिए पूरा जमीन के नीचे तक पूरा एकदम छेद कर देते हैं, सुरंग बना देते हैं, जिससे कि कोई डेड ट्रीज मिले और वो अपना भोजन बना ले। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स, मेन भोजन है टर्माइट्स, दीमक जिसको कहा जाता है। यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। और आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सुने भी होंगे कि किस प्रकार ये लोग अपना भोजन इकट्ठा कर लेते हैं बहुत दूर से, सेवरल फीट अवे से। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यस, द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। आई विल बिगिन विद ब्रूनो। लेखक कहते हैं कि मैं शुरुआत करूंगा ब्रूनो से। ब्रूनो उनका एक स्लॉथ बियर है जिसका नाम है ब्रूनो। माई वाइफ्स पेट, उनकी पत्नी का बहुत ही सबसे प्यारा जानवर है पेट स्लॉथ बियर। उनके वाइफ का बहुत ही करीबी जानवर है, पालतू जानवर है, जो कि जिसको अपने बच्चे के जैसा मानती है। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट। और अचानक एक दुर्घटना के कारण ब्रूनो को लाना पड़ा। ऑथर ने उस छोटे से भालू के बच्चे ब्रूनो को लेकर आया अपनी पत्नी के लिए। कहानी बता रहे हैं। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore। 2 साल पहले वो लोग सुगरकेन, गन्ने के खेत से वो लोग गुजर रहे थे मैसूर के पास। मतलब लेखक थे और भी कुछ लोग थे, उनके साथी थे। पीपल वेर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। लोग क्या कर रहे थे, वाइल्ड पिग्स को भगा रहे थे अपने अपने खेतों से, जंगली पिग्स को भगा रहे थे बाय शूटिंग एट देम। उन पर गोलियां दाग रहे थे लोग वाइल्ड पिग्स पर, जो जंगली जो सुअर थे। सम वेयर शॉट एंड सम एस्केप। तो ये जंगली जो पिग्स थे, हाँ, कुछ मारे गए और कुछ बच के भाग गए गोलियों के निशान से, गोलियों के बुलेट से, बंदूक की गोलियों से। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out, panting in the hot sun। और इन लोगों ने सोचा, लेखक और इनके साथियों ने सोचा कि सब कुछ अब खत्म हो गया और कोई बचा नहीं है। जो भागने वाले भाग गए और जो जानवर, जो पिग्स जो मरने वाले थे, मर गए। तब उसी में सोच ही रहे थे
तब तक अचानक क्या हुआ, एक काला सा स्लॉथ बियर हाँफते हुए उस हॉट सन में दिखाई दिया, उस गर्मी में, गर्मी का मौसम था और सूर्य का तेज गर्मी में वो दिखाई दिया। नेक्स्ट, now I will not shoot a sloth bear, went only, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. तो क्या हुआ, लेखक ने सोचा कि अब मैं स्लॉथ बियर को नहीं मारूंगा फॉर गुड रीजन, अपने फायदे के लिए मैं इस स्लॉथ बियर को नहीं मारूंगा। वांटनली का मतलब होता है फॉर नो गुड रीजन। लेकिन दुर्भाग्यवश ये बेचारा स्लॉथ बियर, जिसको पुअर बीस्ट बोला गया है, क्या हुआ कि उनका एक साथी डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, उसका सोच ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं सोचा कि उस स्लॉथ बियर को छोड़ दिया जाए, एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और उसी जगह पर उस स्लॉथ बियर को गोलियां दाग दिया। एक्सक्यूज मी, this is the big picture of a sloth bear. Can you see? As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the forest. It was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. तो क्या हुआ, जैसे गोलियां दाग लगा उस बियर को, वो गिर गया और लेखक और उसके साथी उस गिरे जानवर को, जो कि गिर गया जमीन पर, उसको ये लोग देखते रहे और ये लोग बहुत ही चौंक गए उसके शरीर पर ब्लैक फर देखते हुए। एंड ही लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट, एंड लेफ्ट द मतलब मर गया। It was a baby bear that had been riding on its mother. 1 minute. यहाँ कुछ छूटा हुआ है थोड़ा, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। I'll find out what is written over there. So as we watched the fallen animal, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। We were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body, मतलब मर गया। It was a baby bear. Prostrate का मतलब lying on the ground, facing downwards. और वहां पर क्या था, इट वॉज ए बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक। एक छोटा सा भालू का बच्चा था, उसी बियर का, उस स्लॉथ बियर का एक बच्चा था जो कि अपने मां के पीठ पर चढ़ रहा था। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जब वो बियर मर गया तो उसके साथ साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, तो वो बच्चा उसके शरीर पे, अपने मां के शरीर पे चढ़ रहा था। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज। ए छोटा सा जो भालू का बच्चा था, अपने जो मां का पड़ा हुआ शरीर था जमीन पर, उस पर वो दौड़ने लगा, पिटीफुल नॉइज करते हुए, करुणा भरी आवाज करते हुए। ही वॉज फीलिंग, इट वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हर, फॉर हिज डेड मदर।
So that's all for today, my dear students. I will come with the next part of this lesson in the next class. Thank you.